Today is our topic disqualification of auditors. As per section 141 subsection 3, the following persons shall not be eligible for the appointment as auditor of the company: a body corporate except limited liability partnership, an officer or employee of the company, any partner or employee of the company. A person whose relative is a director or is the employment of the company as a director or key managerial personnel. A person who has been convicted by the court of an offense involving fraud and a period of 10 years not elapsed from the date of such conviction. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ये वो पर्सनस हैं जो कि एज अ ऑडिटर कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं किए जा सकते, जैसे अ बॉडी कॉर्पोरेट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय है या ऑफिसर है वो ऑडिटर नहीं हो सकता, कंपनी का पार्टनर है या कंपनी का एम्प्लॉय है वो भी पार्टनर नहीं हो सकता, या फिर अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है एज अ कंपनी डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल, या उसका किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले हो रहा है, तो वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज पार्टनर इज़ होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और एनी कंपनी विच इज़ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। Section 141 subsection 3, a person who is in full-time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding employment as auditor. If such person or partner is at the date of such appointment holding appointment or as auditor of more than 20 companies. This is a new disqualification added in the Companies Act 2013. For example, Mr. X is appointed as an auditor of the 20th firm March 31st, 2018. Hence, he can't be appointed as an auditor of the new firm on April 1, 2018 unless he finished to be an auditor of any existing firm. It means कि अगर मिस्टर एक्स 20th फर्म में एज ऑडिटर अपॉइंट किए जा चुके हैं तो वो अगले महीने की फर्स्ट डेट तक किसी और कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. This is a new disqualification added in the Companies Act 2013. For example, Mr. X, auditor of the company ABC Limited, is convicted of an offense of fraud on 1st January 2010. He cannot be appointed as an auditor till 10 years 1st January 2020. इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन जिसने कि कोई फ्रॉड किया हुआ है या पनिश किया गया है उसे कोर्ट की तरफ से, तो वो 10 साल के लिए किसी भी कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज़ अ डायरेक्टर और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर और एनी अदर की मैनेजरियल पोस्ट. This is a new disqualification added in the Companies Act 2013. The term relative is defined under subsection 77 of the Companies Act and its include member of HUF and husband and wife. Further, companies specification of definition details. Rules 2014 have given another list include relatives that if they are related to each other as their father, stepfather, mother, stepmother, son, stepson, son's wife, daughter's husband, brother, stepbrother, sister और स्टेप सिस्टर। ये वो तमाम लोग हैं जो कि कंपनी में अगर एज अ डायरेक्टर के रिलेटिव काम कर रहे हैं तो वो ऑडिटर ऑफ द कंपनी नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे टर्म रिलेटिव डिस्क्राइब कर दी गई है कि हस्बैंड एंड वाइफ फर्दर, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कंपनीज 2014 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मोर रिलेटिव्स लाइक मदर, स्टेप सन, स्टेप फादर, हस्बैंड, ये सारे पर्सनस ऐसे हैं जो कि अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये आप इनको एज ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते।
Next topic, power, rights and duties of an auditor. Every auditor has a right of access to the books of accounts and vouchers of the company at all time, whether they are at registrar's office of the company or at any other place. ऑडिटर ऑफ द कंपनी के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वॉचेस वगैरह को इजीली एक्सेस कर सकता है, किसी भी टाइम जाकर उनको चेक कर सकता है. द ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी आल्सो हैज़ अ राइट ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इफ़ दे आर नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसोलिडेशन. ऑडिटर के पास ये भी राइट होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसकी जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं. एन ऑडिटर हैज़ आल्सो a right to receive notice of any general meeting. He may attend it himself or through his authorized representative who is also qualified to be an auditor. He also has the right to be heard or any part of the business which concern him. ऑडिटर के पास ये भी एक राइट होता है कि वो कंपनी में रहते हुए जनरल मीटिंग का अगर कोई नोटिस आता है तो वो भी रिसीव कर सकता है. इसके बाद अगर वो ख़ुद मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता तो वो अपने किसी अथोराइज पर्सन को जो कि एज अ ऑडिटर क्वालिफाइड होगा उसको भेजेगा, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है. द ऑडिटर ऑल्सो हैज़ अ राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इन द मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़. ही needs to know whether the companies make loans and advances against proper security and the terms these are prejudicial to the interest of the company. ऑडिटर ऑफ द कंपनी के पास ये भी एक राइट है, ये भी उसकी पावर है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम एक्सप्लेनेशन जो कि उसके अपने मैटर्स अपनी ड्यूटी से रिलेटेड है उसके पास होनी चाहिए. उसके बाद उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी लोन बना रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, एडवांसेस दे रही हैं. उसके बाद ट्रांजैक्शंस दैट merely represented a book entry are prejudicial to the interest of the company. इट मीन्स कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी आपका अकाउंट डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके बाद ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, उनको देख सकता है और उनको ऑडिट कर सकता है. ऑफ ऑडिटर क्या है? इन केस ऑफ कंपनी विच इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, इट सेल्स द एसेट्स. ऑडिटर के पास राइट होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और वो क्या कर सकती है कि अपने एसेट सेल कर सकती है. दे आर द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ एट अ प्राइस लेस देन देयर परचेज प्राइस. इट मीन्स कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ परचेज प्राइस से भी कम प्राइस पर सेल कर सकता है. द कंपनी शोज़ द लोन एंड एडवांस दैट इज़ मेक अ डिपॉजिट्स. कंपनी जो लोगों को लोन देती है या एडवांस प्रोवाइड करती है तो वो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको क्या शो करती है? एज अ डिपॉजिट, क्योंकि कंपनी को एक टाइम के बाद वो लोन वापस मिलना होता है, इसलिए. इट चार्ज द पर्सनल एक्सपेंस टू रेवेन्यू अकाउंट. इट स्टेट्स द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट वेयर इट हैज़ अलॉटेड द शेयर्स इन कैश, it has received the cash or not, also whether the position in the books. Remuneration of auditors. The remuneration of the auditor of the company shall be fixed in its annual general meeting or in such manner as may be determined therein. The board may be fixed remuneration of the first auditor appointed by it. The remuneration will include expenses incurred by the auditor in connection with the audit of the company. The question is, who fixes remuneration of various auditors? The answer, the person or persons who appoint the auditor fix his remuneration. जो भी पर्सनस हैं कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं या कोई मैनेजर हो सकता है, वही ऑडिटर का रेमुनरेशन डिसाइड करता है. When an auditor is appointed by the board of directors, first auditors and casual vacancy, the remuneration is fixed by the board of directors. When an auditor is appointed by the central government, the central government fix the remuneration. Shareholders also fix the remuneration of an auditor in the following two circumstances: when the auditor is appointed in the annual general meeting
when the auditor is appointed by the Controller Auditor General. When the auditor is appointed, many persons can be fixed remuneration. The remuneration may be fixed either at the general meeting or annual general meeting. If a retiring auditor is reappointed, his remuneration continue to become unless it is decided otherwise in the general meeting. Any sum paid by the company to meet the expense of auditors will be included in the word remuneration. It means कि कंपनी जितने भी expenses एज ऑडिटर पे करती है तो वो उनको क्या करती है ऑडिटर के रेमुनरेशन से रिलेटेड ही कर देती है. रेमुनरेशन मीन्स कि एक ऑडिटर को अगर कंपनी अपॉइंट कर रही है तो उसको उसका क्या सैलरी देनी है, क्या रिवार्ड देना है, ये सारा कुछ आपके रेमुनरेशन में आता है. However, the provision does not apply to a small auditor whose income is less than 15 lakhs per year and new auditor who have not completed first 5 years of the practice. It means कि ये जो कुछ क्लासेस हैं या कुछ ड्यूटीज़ हैं या कुछ राइट्स हैं ये एक ऑडिटर ही परफॉर्म करता है. रेमुनरेशन की ये प्रोविजन स्मॉल ऑडिटर्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती जिनकी इनकम 15 लाख से कम होती है या फिर वो ऑडिटर जो कि 5 साल से कम अरसे के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर. द मेंबर ऑफ अ कंपनी मे रिमूव एन ऑडिटर from office at any time during their term of office or decide not to reappoint the auditor for a further term. They must give the company 28 days notice of their intention to put a general meeting a resolution to remove the auditor or appoint somebody else. इट मीन्स के कंपनी जब भी ऑडिटर को रिमूव करती है तो वो कभी भी किसी भी टाइम रिमूव कर सकती है या फिर इस तरह हो सकता है कि 28 डेज़ पहले एक नोटिस दिया जाता है कि उनकी अटेंशंस ये हैं और वो आपको निकालना चाहते हैं या इन द केस ऑफ रिटन रेजोल्यूशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू अपॉइंट समबडी एल्स नॉट टू रिमूव एन ऑडिटर एज दिस मस्ट बी डन एट जनरल मीटिंग. Company has 28 days instead of the usual 21st days to circulate the resolution. It means कि 28 या 21 दिन से पहले जनरल मीटिंग के एक रेजोल्यूशन होता है वो पास किया जाता है ताकि कंपनी के ऑडिटर को पता चल जाए कि उसको रिमूव किया जा रहा है. The company must send a copy of notice of an intent resolution to the auditor, who then has the right to make a written response and require the company send it to the company's members and to speak at meeting where the resolution is to be considered. After the receiving of notice, auditor has right to make a written response. इसके बाद उसके पास एक written form में response होगा. वो क्या करेगा, कंपनी को भेजेगा, कंपनी के members को भेजेगा और वहाँ पे भेजेगा जहाँ पे आपकी journal meeting conduct की जाती है. Although a company may remove an auditor from office at any time, the auditor may be entitled to compensation or damage for termination of appointment. इसका मतलब ये है कि कंपनी किसी भी वक्त अपने ऑडिटर को निकाल सकती है, किसी भी वक्त उसको रिमूव कर सकती है. If an auditor wishes to resign, he must give written notice to the company, which includes depositing a statement at company's registered office, sitting out and circumstances conducted with the casing to hold office at he considers should be brought to the attention of the members or creditors of the company. अगर ऑडिटर की अपनी ख्वाहिश है कि वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो मस्ट एक रिटन नोटिस देगा जिसमें उसमें कंपनी से रिलेटेड डिपॉजिटिंग स्टेटमेंट होगी. उसके बाद उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितना भी कंपनी का डाटा है वो सारा उसने साथ अटैच करना है और इसके बाद वो रिज़ाइन कर सकता है. सम टाइम ऐसे होता है कि एक ऑडिटर से कोई फ्रॉड कंडक्ट हो जाता है या वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है या वो ही कोई मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के मैनेजमेंट को इसको रिमूव करना होता है. सो कुछ कंडीशंस पे उसको रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने से पहले 28 डेज़ बिफोर उसको एक नोटिस दिया जाता है. उस नोटिस के रिसीव होने के बाद कंपनी न्यू ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है.
इसके बाद सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक ऑडिटर की अपनी विश होती है कि वो रिज़ाइन कर जाए, लेकिन रिज़ाइन करने का भी एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही वो रिज़ाइन कर सकता है।